तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि P invariant is a set of markings. एक marking भी हो सकती है. It can be more than one markings. Is a set of markings for which some function of the number of tokens in the network remains the same. For example, अगर आप एक टोकन के साथ डील कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट के एक मार्किंग के अंदर 3 थे तो अगर वो 3 ही रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है लेकिन रहते 3 ही हैं, तो वो एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ अ पी इनवेरिएंट. अभी हम देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं कि पी इनवेरिएंट का मतलब क्या है. मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट मार्किंग्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक मार्किंग है M0 मार्किंग है, आपके पास है 1 1 0 0 0 ऐसे करके टोकन है. एक और मार्किंग M1 है, इसमें आपके पास टोकन है 0 1 0 1 0 0 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स 1 1 और 1 1 यहाँ पे सेम है. तो इट्स अ स्पेशल केस of it's a special case of T invariance. अगर आप एक टोकन के साथ ही डील कर रहे हैं, your one place allows only one token. So it's a special case of T invariance. It's an example of T invariance. These two markings are in the T invariant set of P लिखना चाहिए था. P invariants are in the set of P invariance markings for a certain network from which these markings have been obtained. ठीक है, तो ये एक मार्किंग नहीं है. It's a set of markings for which some function of the number of tokens. Some function का मतलब हम कहते हैं number of tokens multiplied by 1 वो function है. In this case, number of tokens multiplied by 1, this token multiplied by 1, this token multiplied by 2 भी हो सकता है. अगर आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, even then it remains the same. फिर ये सब 1 की जगह पर 2 हो जाएंगे. तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम लिखते हैं सम फंक्शन. मल्टीप्लाइड बाय 1 भी एक फंक्शन ही है ना. मल्टीप्लाइड बाय 1 इट्स अ फंक्शन. ठीक है, तो मैथमेटिकली P invariance is described as, mathematically this is M times IM is equal to 0. M transpose time IM is equal to 0. मतलब where M transpose is P1 P2 up to Pn, यानी इस मैट्रिक्स का साइज होगा 1 cross P, where capital P is the number of places, times the incidence matrix IM का साइज होगा. आपको पता है हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर P1 P2 T1 T2, the size of the IM matrix is capital P, the number of places, times the capital of T, the number of transitions. So you're going to multiply two matrices. एक का size है 1 cross P, the other has P cross T. So they can be multiplied because the number of columns here is equal to the number of rows here, and finally the answer would have a size 1 cross T. So if it is equal to 0, this marking is in the set of the P invariant markings for a certain network. ठीक है जी, तो कैसे
कैलकुलेट करते हैं पी इनवेरिएंट सेट की पूरी मार्किंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पी इनवेरिएंट सेट की मार्किंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये नेटवर्क एक बड़ा ही छोटा सा नेटवर्क गिवन है। एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास है से ये P1 place is a loading unloading example, loading processing unloading example, monitoring unloading processing and unloading process P2 P3 and this transition is T3. So T3 ठीक हो गया। So now we can draw its incidence matrix IM so that we can find out its P invariant. So number of places P1, P2, P3, T1, T2 and T3. So firing T1 का रिजल्ट क्या होता है? This loses a token, this gets a token. तो ये +1 हो गया, -1 तो +1. P3 अनचेंज रहता है. Firing T2 gives P3 a token from P2 और P3 अनचेंज रहता है. और फायरिंग T3 देता है P1 को एक टोकन P3 से लेकर और ये 0. तो ये हो गया, ये हो गया हमारा IM matrix जिसका साइज है 3 क्रॉस 3 क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसेस भी 3 है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी 3 है। तो हम फाइंड करने वाले हैं इसके लिए एक पी इनवेरिएंट। हम इसके लिए फाइंड करने वाले हैं एक पी इनवेरिएंट M transpose times the incidence matrix should be equal to 0. So we are in search of 3 places जो कि हैं P1, P2 and P3. Their transpose size 1 cross 3 and IN -1 0 1 1 -1 0 0 1 -1 size 3 cross 3. So they can be multiplied and the result would have a size 1 cross 3. So this is, and of course it is equal to 0. So minus P1 plus P2, the first row multiplied by the first column. And plus 0, and then first row multiplied by the second column, 0. So this is equal to 0. And P1 0 minus P2 plus P3 is equal to a 0, or P1 plus 0 minus P3 is equal to a 0. ठीक है जी? So minus P1 plus P2 is equal to a 0. 0 minus P1 plus P3 plus P1 0 minus P3 is equal to 0. So now we have these 3 equations and 3 unknowns. The first equation tells us that P1 is equal to P2. The second tells us that P2 is equal to P3. The third tells that P3 is equal to P1. So this is the only P1 is equal to P2.
The second tells that P2 is equal to P3, and the third tells us that P3 is equal to P1. This means we can put them either. इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 0 is one marking in the set M1. It's the first marking. The second such marking would be 1 1 1 because we don't have a 0.5 option. So these two markings are in the set of the P invariant is in P invariant set. The P invariant set contains M1 and M2. These are the two markings M1 and M2. क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके पास ये तीनों तो भी इनका सम सेम रहता है और ये तीनों तो भी ये सम सेम रहता है, मतलब सम फंक्शन से आती है कि अगर आप इसको +1 कर देंगे तो वो यही हो जाता है 1 + 1, तो सम फंक्शन वही हो गया ना 0 0 0 और 1 1 1, तो सारी जगह पर टोकन हो तो वो एक पी इनवेरिएंट है इस केस में। लेकिन अभी हम एक ऐसी और थोड़ी सी मज़ीद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें पी इनवेरिएंट सारे 1 1 या सारे 0 0 नहीं आ जाएंगे, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो लेट्स स्टडी द लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे about p-invariance where the solution is not all zeros or all ones. It's a combination of zeros and ones. So the comprehensive example solve करने वाले हैं। So this example gives you a better understanding of p-invariance. ये वाली, ये मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल सॉल्व की थी। ये थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी बड़ी है। But the number of places and number of transitions are large. We have 6 transitions and 7 places. थोड़ी सी बड़ी example है, मतलब it's not difficult. The network seems to be a bit complex because we have certain places P1, certain transitions. How many transitions? 6 transitions and 7 places. And then we have this T2. This P2 is feeding this T2, or T2 supplies P4 is also feeding. P4 is also feeding this T2. ये दोनों feed कर रहे हैं, और the output is given to P3. And P3 is feeding T3. ठीक है, और the output is being fed to P1 and P4. और फिर है P5 यहाँ है, P5 और यहाँ है P6 और यहाँ है P7। ठीक है जी। तो then we have transition T5, T3, T1, T2, T3 हो गया, T4. Now we have this transition T4, which this P5 is feeding, and T4 is feeding P6, or T5 transition at T5. T5, the inputs are from P6 and P4, and the output is given to P7. ऐसे P7 का, और फिर ये T6 है, the last transition जिसको P7 फीड कर रहा है, और ये P5 को और P4 को इसकी आउटपुट जा रही है, वो ज़बरदस्त हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब लार्जर नेटवर्क है, लेकिन इसमें इसका हम पी इनवेरिएंट फाइंड करने वाले हैं, और इसका पी इनवेरिएंट होगा अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द पी इनवेरिएंट जो कि हमने फाइंड किया, उसमें इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस आएंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल होगी। ये हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल होगी। वेल, तो आपके पास है कैपिटल पी है, आपके पास कैपिटल पी इज़ 7 एंड कैपिटल टी इज़ 6। तो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है
इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखिए. इंसिडेंस मैट्रिक्स हम थोड़ा सा बना लेते हैं. द फर्स्ट रो वुड बी by firing T1. If you fire T1, so a token is consumed from P1 and is given to P2. So -1, 1, and all other they remain the same. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. So there will be 7 rows and 5 columns. Or T2, if T2 is fired, a token is consumed from P2 and P4. So from P2 and P4 and is assigned to and is given to P3 and all other they remain the same. ठीक है जी. और if we fire T3 तो हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा सो दैट कि हम इस टोटल IM को बना सकें. इस IM को बनाने के लिए हमें नेटवर्क इरेज करना पड़ेगा इसलिए जितना बन सकता है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फिर हमें नेटवर्क इरेज करना होगा. T3, if T3 is fired, a token is consumed from P3 and is supplied to P1 and P4. Plus 1. ठीक है. तो इससे आगे भी बन सकता है मतलब नेटवर्क आपने देख लिया. अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए सो दैट मैं इस IM को कम्प्लीटली लिख सकूं और फिर M ट्रांसपोज टाइम्स IM इज इक्वल टू 0 लिखकर हम इसकी प्लेस इनवेरियंस फाइंड कर सकें. इसके लिए मुझे नेटवर्क इरेज करना होगा. तो एंड देन आई विल राइट IM वन सेकेंड क्योंकि मैं IM कैसे लिखूंगा मैंने IM पहले लिखा हुआ है आपके लिए अपने पेपर पर. मैं वहीं से कॉपी कर दूँगा. मैंने आपके लिए IM पेपर के ऊपर पहले लिख लिया हुआ है. तो IM है क्योंकि हमने इसको फाइनली T से मल्टीप्लाई भी करना इसलिए यहाँ लिखता हूँ. IM है -1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 0 -1 0 -1 1 1 -1 0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 0 0 3 हो गए. two more 6 है 3 more columns 0 0 0 0 -1 1 0. ठीक है. और नेक्स्ट 0 0 0 5 के लिए -1 0 -1 और फिर एक 1 और फाइनली आखिरी ट्रांजिशन के लिए है 0 0 0 and 1 1 0 और ये है -1. ठीक है जनाब. तो ये है हमारे पास IM और अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी प्लेस इनवेरियंस क्या होगी. प्लेस इनवेरियंट सेट ऑफ प्लेस इनवेरियंट्स क्या होगा. तो ये IM है और हम M ट्रांसपोज टाइम्स IM को इज इक्वल टू 0 करना चाहते हैं और जो प्रेम्पटी मिल जाएगा M ट्रांसपोज मिल जाएगा वो उनको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर हम बता देंगे कि जनाब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है. तो लिख लेते हैं P1 7 प्लेसेस है ना. P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7. ठीक है. 7 प्लेसेस हैं. दिस मैट्रिक्स इज ऑफ साइज 1 क्रॉस 7 whereas this matrix is of size 7 क्रॉस 5 है ना. 7 रोज हैं और 5 ट्रांजिशंस हैं. तो they can be multiplied. The result would be a 1 cross 5 matrix or a vector 1 cross 5 vector. तो हम इसको अगर सॉल्व करें the first would be
the first row multiplied by the first column. So that would be minus p1 plus p2 would be equal to a 0. The second would be minus p2 plus p3 माइनस p4 अभी आपका काम आ रहा है इज इक्वल टू 0. ठीक है. और फिर नेक्स्ट वुड बी p3 1 नहीं p1 0 p1 p2 p3 p1 minus p3 प्लस p4 इज इक्वल टू 0. और फिर ये होगा p1 p2 p3 p4 p5 माइनस p5 प्लस p6 इज इक्वल टू 0. और ये होगा p1 p2 p3 p4 माइनस p4 प्लस 0 माइनस p6 प्लस p7 इज इक्वल टू 0. और आखिरी होगा, आखिरी पे देखिए इक्वेशन है ये वाली p1 p2 p3 p4 p4 प्लस p5 0 p6 माइनस p7 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. तो इससे को सॉल्व करने के तरीके हैं, कई तरीके, देयर आर मैनी वेज. लेकिन मतलब सारे तरीके थोड़े से लंबे हैं. p1 इज इक्वल टू p2, इसमें इसको यानी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि p1 इज इक्वल टू p2. ठीक है. तो p1 इज इक्वल टू p2, दिस मीन्स हम p2 से जान छुड़ा सकते हैं. तो जहाँ जहाँ p2 है वहाँ पर हम p1 कर देते हैं. माइनस p1 प्लस p3 माइनस p4 और p2 कहीं नहीं है. ठीक है. तो p5 इज इक्वल टू p6 है. यहाँ से पता लग रहा है कि p5 इज इक्वल टू p6 है. तो जहाँ जहाँ p6 है वहाँ वहाँ p5 लिख देते हैं, p6 से जान छुड़ा देते हैं. ओके. तो इसका ये भी ख़त्म हो गया. ये देखिए माइनस p1 प्लस p3 माइनस 4 p1 माइनस p3 प्लस p4. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये सब खत्म हो जाता है. ठीक है. अच्छा. ठीक है. ठीक हो गया. तो ये हमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है. इनफैक्ट ये एक ही इन्फॉर्मेशन है. अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे है कि माइनस p1 प्लस p3 माइनस p4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, तो ये हो जाएगा प्लस p1, ये हो जाएगा माइनस p3, हो जाएगा प्लस p4. तो ये हमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए इनमें से भी एक इस्तेमाल हो सकती है. The other is useless for us. p5 is equal to p6, ये भी हमने सारी रिप्लेस कर दी, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी यूज़ हो गई. तो अब हमारे पास रह गई ये इक्वेशंस p4 p5 p7 p4 p5 p7 माइनस p4 माइनस p5 प्लस p7. अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 तो हो जाएगा माइनस p4, हो जाएगा माइनस p5, हो जाएगा प्लस p7, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी. इसका मतलब ये भी यूजलेस है, यूजलेस इक्वेशन है, यूजलेस इक्वेशन है ये भी है. तो ये काम की इक्वेशंस ये दो रह गई बस. p1 माइनस p3 प्लस p4, or we can write as p3 is p1 plus p4. p3 is p1 plus p4. एक ये काम की इक्वेशन है. p1 plus p4, अगर p3 को अदर साइड पे ले जाएं तो p3 is p1 plus p4. एक बस ये काम की इक्वेशन है और एक ये कहाँ पे काम की इक्वेशन बन जाएगी. और वो क्या इक्वेशन है? वो इक्वेशन है p4 is p7 माइनस p5. अगर इन दोनों को p4 के टर्म्स में लिख लेते तो भी ठीक था. p4 is p3 माइनस p1, और यहाँ पर लिख लेते p4 is, p4 को अदर साइड पे ले जाए तो p7 माइनस p5, p7 माइनस p5.
P4 is P7 minus P5. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को कंपेयर कर लें तो P3 माइनस P1 P7 माइनस P5 के इक्वल है। P3 माइनस P1, तो काम की इंफॉर्मेशन बस यही है कि P3 माइनस P1 is P7 माइनस P5। अब देखते हैं ये कौन कौन से ऐसे हमारे पास मार्किंग्स हैं जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। P3 minus P1 is P7 minus P5. ठीक हो गया, तो आपकी इंफॉर्मेशन यही रहेगी बेसिक। ठीक हो गया, तो अब now we have hit and try. Once we have done this, now the next is hit and trial. And with hit and trial, we reach to the following answer. For example, M1 transpose is this. तो पहले हमें P invariant मार्किंग मिली है, P invariant मार्किंग मिली, वो ये है 0 0 1 1 0 0 1। So P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, तो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं P3 माइनस P1। लिख देता है यहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5 P6 and P7. So P3 minus P1, P3 minus P1 is a 1, P7 minus P5, P7 minus P5 is also a 1। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करती है। लेट्स चेक कीजिए, ये हमें ये हमें क्या ये इसका एक P इनवेरिएंट है या नहीं, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 और 1, तो पुट कर देते हैं। हमें क्या कर देते हैं पुट और उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वाकई 0 ही प्रोड्यूस करती है। 0 0 1 times 0 is a 0, 1 times 0 is a 0, 0 times 0 is a 0, 0 times 0 is 0 0। तो ये तो एक फर्स्ट, तो ये 0 ही हो गया, तो 0 हो गया। उसके बाद 0 0 1 minus 1 0 0 0, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो 0 times 1 is a 0, 0 times 0 is a 0, 1 times minus 1 is a minus 1, 1 times 1 is a 1, 0 0, here 0, so 1 minus 1 plus 1 is also a 0, so 0 times 0 is a 0, so 0, so 1 times 0 is a 0, 1 times 0 is a 0, 0 times minus 1 is a 0, 0 times 1 is a 0, 1 times 0 is a 0, 0 times 0 is a 0, 0 0, 1 times minus 1 is a minus 1, 0 times 0 is a 0, 0 times minus 1 is a 0, 1 times 1 is a 1, so minus 1 plus 1, it's a 0. 0 0 1 times 0 0, 1 times 1 is a 1, 0 times 1 is a 1, 0 1 0 times 0 is 0, 1 times minus 1 is a minus 1, so 1 minus 1 is a 0, तो देखिए ये 0 हो गया। इसका मतलब ये कि ये through hit and trial we reach to this marking, one of the 3 markings जो कि प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रोड्यूस कर रही है a result that is 0। so this, तो फिर हमारा क्लेम क्या हुआ? हमारा क्लेम ये है, बल्कि इट्स अ रिजल्ट कि M1 is in the set of P invariants for
for this Pn, M1 is in the set of P invariants of this Petri net. अच्छा, इसी Petri net के लिए हम थ्रू इट एंड ट्रायल के, लेकिन ये भी देखना है कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, P3 माइनस P1 इज P7 माइनस P5। तो एक बात हमें एक हिंट मिलता है वहाँ उस पूरे उन 7 इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं उनसे हमें रिड्यूस करके ये एक इक्वेशन बच गई थी, बाकी सब इसी के अंदर मर्ज हो गई हैं। अच्छा, एक और मार्किंग M2 जो इसी से बनाई जा सकती है वो है 0 0 1 1 0 0 1, यानी ये P1, ये P2, P3, P4, P5, P6 and P7. So let's see, P3 minus P1, P3 minus P1 is of 1, P7 minus P5 is of 1. ठीक हो गया, तो ये उससे डिफरेंट है, लेकिन इसको आप वैसे ही वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब 0 0 0 0 1। वो इफेक्टिव मैंने वही लिख दिया दोबारा, एक और मार्किंग भी है। ओ ये मैंने वही लिख दी, ये दूसरी मार्किंग है 0 0 0 0 एंड दिस थ्री आर 1। ठीक है, तो इसको अगर वेरीफाई करें, P3 माइनस P1 इज अ 0, P3 minus P1 is 0, and P7 minus P5, P7 is 1, P5 is also 1, is also 0। तो ये भी वेरीफाई करती है, हमारी इस रिक्वायरमेंट को। और अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं 0 0 0 0 और द लास्ट थ्रीज आर 1s, और फिर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरी मार्किंग है जो हमें प्रोवाइड करेगी विद, ये प्रोवाइड करती है with the answer 0 times minus 1 is a 0, 0 times 1 is a 0, 0 it's a 0, it's 0, it's 0, it's 0। तो ये 0 हो गया, 0 times 0 0 0 0 4 तो 0 हो गए, आखिरी वाले 3 देखने हैं ना, तो ये 0 है। शुरू वाले 4 तो ना देखें ना, उनके तो 0 से, आखिरी वाले 3 देख लेते हैं। 1 times minus 1, ओ ये आखिरी वाले 3 देख लेते हैं, 1 2 3, ये भी 0 इजी हो गए। अच्छा जी, इसकी बारी आ गई, आखिरी वाले 3 देख लेते हैं। 1 times minus 1 is a minus 1 plus 1 plus 0, तो ये भी 0 हो गया। और आखिरी वाले इसके भी 3 देख लेते हैं। 0 minus 1 plus 1, ये भी 0 हो गया। और फिर ये फाइनली आखिरी वाले 3 1s देखने हैं, तो ये 1 और प्लस 0 और माइनस 1, तो ये भी 0 हो गया। तो ये सारे 0 हो गए। तो M1 and M2 are in the set of P invariants are in the set of P invariants for this network। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यही है। अच्छा, इसकी एक सिमुलेशन मैंने बनाई थी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो आप खुद ही चला कर देख लेंगे। तो बस आज का लेक्चर यही तक है, ठीक है जनाब, थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट टाइम हमारे पास 2 लेक्चर्स और हैं,
तो मैं ये बताता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे। दो लेक्चर्स और हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनमें जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कुछ हम इंट्रोडक्शन लेंगे एसपीएन्स का, स्टोकेस्टिक पेट्री नेट्स नेक्स्ट टाइम। लेकिन वो उनको समझने के लिए हमें मार्कोव मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो मार्कोव मॉडल्स हमें पढ़े नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी स्टोकेस्टिक पीएन्स पेट्री नेट्स और मॉडलिंग के अंदर हमारी कोर्स आउटलाइन में एक आखिरी आर्टिकल है सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स का, यानी रैंडम नंबर जनरेटर्स थ्रू एल्गोरिथम्स हम कैसे सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। सूडो का मतलब होता है डमी, तो एक्चुअली नेचुरल बेस से रैंडम नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर हम थ्रू एल्गोरिथम्स, थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड नंबर्स जनरेट करें तो वी कॉल देम सूडो रैंडम नंबर्स। तो सूडो नंबर जनरेटर्स भी हमारी कोर्स आउटलाइन में है। हम नेक्स्ट टू लेक्चर, दो ही लेक्चर्स रह गए हैं, नेक्स्ट टू लेक्चर्स ये पढ़ने वाले हैं 17th 10th और 17th, दो ही लेक्चर्स रहती हैं। तो हम स्टोकेस्टिक पैटर्न और सूडो रैंडम जनरेटर्स पढ़ेंगे, ये दो टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, थैंक यू।